कैसे हैं आप सभी लोग? गुड, अच्छा फाइन. सर. यस सर. Okay, you can switch on your camera. अपने अपने कैमरा स्विच ऑन करिए. अमन, हिमानी एंड और कौन है? शाहिल, हिमांशु. गुड. नमन. नमन, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? कैसे आपकी चल रही है स्टडी? नमन पोखरियाल. फाइन सर. फाइन. गुड. ओके. आपको जो पढ़ाया था पिछली क्लास में आपने पढ़ा? यस सर. Very good. Sahil, if you don't have an issue, then you can switch on your camera. Sahil. Yes sir. Just a minute. Himanshu. So, yes, we are. Which chapter we are doing right now? Federalism. Federalism. Okay, federalism. We are doing federalism. So, in federalism, I taught you federalism, features of federalism, isn't it? Yes, sir. Okay. So, features of federalism we did. So, do you anybody have any kind of doubt in features of federalism? किसी को डाउट है आप में से? आदिति. No. Okay. So have you gone through DPP? DPP आप गए पढ़े आपने सॉल्व किया उसे क्वेश्चंस लगाए आपने? Yes sir. ओके. आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं पावर शेयरिंग के पर्टिकुलरली? Yes sir. वेरी गुड हिमांशु. व्हाट अबाउट द रेस्ट? Yes sir. Sahil also said yes. Himani, you are not speaking anything. Naman is saying yes. Okay, good. Aditi, Himani, Yes, sir. Yes, sir. you are able to solve Yes. DPP? Yes, sir. Okay. Okay, good. Okay. So Himanshu Yadav is saying that my voice is not clear. Himanshu, क्या प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Now it's okay. Is my voice is clear now to you? सभी के लिए बताओ क्या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. No sir. Okay. Himanshu, retry. Might be some network issue. सर मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ एक बार. हाँ. Okay, you can do so. So we did federalism. So in federalism, I taught you particularly features of federalism. Apart from features of federalism, what else I taught you? Sir, coming together federalism, holding together federalism, Very unitary good. form of government, federal form of government, and Okay, you just okay. told about earlier Belgium. Okay. So I would like to ask some questions. Tawfiq Malik. Tawfiq, are you there? तौफिक मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? तौफिक. Okay. So let's have a conversation from Sahil. Sahil, I told you to switch on your camera, isn't it, Sahil? Himanshu, Naman, why you have switched off your camera? कैमरा स्विच ऑफ क्यों किया है? जब कॉन्वर्सेशन हो रही है तो आप कैसे कैमरा ऑन करके कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑफ कर लीजिए, नॉट एन इशू. साहिल. हिमांशु. यस. तो हिमांशु अब आवाज आ रही है ठीक से? हिमांशु. नमन, आप मुझे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को समझा सकते हैं? Yes sir. Sir, in coming together federalism, several big states or small states come together and form
form a bigger state for protecting their own interest and security, and in holding together federation, a country is divided between several states and power is divided among them. So what is the basic difference? If someone asks you that what is the basic difference between coming together federalism and holding together federalism, then what will you answer in that sense? In coming together federalism, the center has the most power, and in holding together federalism, all the states have been given equal power. Okay, Aditi, Yes, नमन sir. नमन सही कह रहा है? No, sir. Sir, ये उल्टा बोल रहा है. Okay, क्या है करेक्ट आंसर अदिति? सर इन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जो होता है कि सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है एंड दे कैन स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द कोलिशन गवर्नमेंट, और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है उसके अंदर सेंटर के पास ज़्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. वेरी गुड. नमन, आप ये गलती कर रहे थे यहाँ पे. ओके नमन, ओके सर. आपने क्या किया कि डेटा को स्वैप कर दिया. आप कमिंग टुगेदर के डेटा को आपने होल्डिंग में बोल दिया और होल्डिंग के कमिंग टुगेदर. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट टाइम. ओके सर. ओके, तो वेरी गुड आदित्य. आदित्य, एक क्वेश्चन का और जवाब दो आप. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट? सर जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या फिर जो सबऑर्डिनेट होती है वो ऑर्डिनेट होती है गवर्नमेंट को, और जो फेडरल फॉर्म ऑफ होती है वो 2 या मोर लेवल्स की होती है एंड दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट. सर और भी पॉइंट्स बताऊं? और सर जैसे एग्जांपल होते हैं आप कॉपी, आदित्य आप कॉपी से देख नहीं रहे हो ना? नो सर मैं लिखती नहीं हूँ, मैं इसके सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ. ओके, चलो. वैसे आपको नोट्स तो बनाना होगा जब यस आपके. सर, वो मैं पर्टिकुलरली जैसे सर जो आप आज पढ़ाओगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करती हूँ साथ में सारा, वरना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. चलो ठीक है. सर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लाइक एग्जांपल हो गया चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, एंड सर फेडरल गवर्नमेंट का हो गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. ओके, टॉपिक. सर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आप बात कर रहे हो ना? हाँ सर. तो यूनिटरी में क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? डिफरेंस बताइए हिमांशु, साहिल. आई थिंक सेम ही है. सेम ही है ना. यूनिटरी सिंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिंगल. तो सिंगल मींस मोनार्की विल एक्सरसाइज पावर्स, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इन दैट सेंस यू कैन से दैट इट इज आल्सो अ यूनिटरी गवर्नमेंट बट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाटएवर यू हैव टोल्ड राइट नाउ इज करेक्ट, बट वी विल कॉल दैट अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो yes, I was talking to Tawfiq Malik. Tawfiq Malik, can you hear me? You can Tawfiq Malik, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? You can switch on your camera, switch off your camera if you want, if there is any problem. Okay, Sahil, आप साहिल, कैन यू हियर मी? अच्छा साहिल, आप एक क्वेश्चन का जवाब दो. दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय jurisdiction? Yes, sir. Sir, jurisdiction is an area over which someone has legal authority. Okay, so can you describe the 7 features of federalism, whichever I taught you, whatever I have taught you? Sir, can you repeat? What is means? Can you explain the features of federalism, in the Yes, manner sir. in which I taught you? Yes, sir. There are 2 or more levels of government first, and different levels of government govern the same citizens but have different jurisdictional powers. The jurisdictional powers of different levels of government are mentioned in the Constitution. No one level of the government can change constitutional provisions on its own.
if there is a dispute between the decisions of central and state government, the judiciary or the court can act as an umpire. Very good. And the source of revenue of each government is written in the constitution to ensure its what we can say financial autonomy. And last was that federal government has two objectives: first, to maintain the unity of the country as well as accommodate the regional diversities. And Okay, good, very good. ठीक है, very good. तो चलिए, so I think that आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बीपीपी टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं. तो मेक श्योर दैट आप बीपीपी टाइम पे सॉल्व करें और पढ़ते रहें. नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आज हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है? कैन एनीवन विल गाइड मी? Which topic I have to start today? Can you answer me this? साहिल, नमन पोखरियाल, आप लोग पढ़ रहे हो ना? आपको पता होगा ना कौन सा टॉपिक आज शुरू होगा? साहिल, आदिति, which sir, topic? the various types of lists, what makes India a federal country? Okay, what makes India a federal country? So what do you think, that India is a federal country? Sir, in various terms it is federal, but I see like the various powers that the central government has, then it makes India a quasi-federal country. A federal country. Okay, anybody else? Anybody else have any different answer? Can anyone have, do anybody have any different answer apart from this? Imani, Aditi, and Naman, Himanshu, Taufik. किसी के पास इसके अलावा कोई दूसरा आंसर है? नो. सर मतलब बस मेरे हिसाब से ये है कि इंडिया फुली फेडरल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ बहुत ज्यादा पावर्स हैं. Okay, so फुली फेडरल. India is not a federal country. You want to say this? No, fully federal नहीं है, partially federal. Partially federal, in which you can see that India center has more power than state government. That's what Yes. you were saying. Yes. Okay, तो चलिए, Constitution says, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है. Constitution says India क्या है? As per Article 1 of the Indian Constitution, is a union of states. In a union of states. क्या है? Union of states. States. Sir, are you presenting the screen? अच्छा, आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा है? नहीं सर. सर मेरे को दिख रहा है. हाँ दिख गया. सॉरी. तो दिख गया. हाँ, it's a union of states. Union of states. Yeah, this question has been asked in NTSC. So make sure that you know that what are being asked in NTSC and all. है ना? National Talent Search Examination. I think you all know this competition. है ना? That's why you are here. Yes sir. So federalism term. Do you know that this federalism term is mentioned in our constitution? It is mentioned in our constitution. Not mentioned in our constitution. Okay, it is not mentioned in our constitution. हमारे constitution में mentioned नहीं है. Okay. Okay, is this clear? But yes, if you will look at the overall structure of Indian federalism, you will find that somewhere it follows the 7 features of federalism. जो important 7 features हम लोगों ने पढ़े थे, that feature somewhere it follows. But here a special condition is this, that the center has more power than state government. But it is also a kind of federation which we are aware of. क्या नाम है उसका? Holding together federation. ठीक है, we studied earlier that holding together federation में होता ही ऐसे है कि that center has more power than state government. Okay, तो
some people says that no, it is not a pure federal country. Okay, pure federal नहीं है. Holding together को भी यही कहा गया है because center has more power than state government. तो हम लोग देखेंगे that 7 features जो हम लोगों ने 7 features of federalism पढ़ा, क्या actually इंडिया वो फॉलो कर रहा है? To actually India follows that 7 features or not? If we will look, we will find that yes, it follows. So अब हम लोग कंपेयर करेंगे. The first one which we studied earlier was that कि इसके पास two or more level of government होंगे. In India you will find that there are 3 level of government. पहला क्या है? 3 level of government. Do you know this? I think. Yes, sir. And there will be a center. Yes, sir. फिर स्टेट होगा, फिर लोकल होगा. और लोकल को हम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी कहते हैं. गवर्नमेंट है, इनके आगे गवर्नमेंट लगा लेना. ओके, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. P plus M here refers to panchayat and municipality. Okay, so threefold distribution of legislative power. So there is a threefold, write it down, threefold distribution of legislative power. Threefold distribution है किसका? Legislative power का. ओके, अब ये जो तीनों अब ये इसमें हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि इट्स 2 or more tier of government. फिर हमने ये पढ़ा कि all the tier of government will have its own jurisdiction and that jurisdiction will be clearly mentioned in our constitution. So they have also their own jurisdiction. Okay, अब इनके jurisdiction कहाँ है? It has been mentioned in our constitution. और constitution में there is a schedule 7. कौन सा schedule है? Schedule 7 of the Indian Constitution. Okay, how many schedules are there in our constitution? 12. Write it down if you want. That how many schedules are there in our constitution? It's 12. So there are 7. On the 7th schedule, you will find that there they have mentioned 3 lists. Okay, 3 list हम लोगों को पढ़ना है. एक है यूनियन लिस्ट. कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट. सेकंड स्टेट लिस्ट. और थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. पिछले साल के अगर एनटीएससी का पेपर उठाओगे सो दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ओके, अब वो क्वेश्चन क्या था? ठीक है, I think not enough space. Should I rub this now? Rub कर दें? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So yes, as I told you, there are 3 lists. Union list, state list, and the third one is concurrent list. है ना? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. अब ये देखोगे इसमें एक सब्जेक्ट की बात आती है. तो हम इनिशियली देयर वाज 97 सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट, 66 इन स्टेट लिस्ट एंड 47 इन कॉन्करेंट लिस्ट. यही क्वेश्चन आया ही था एनटीएससी के पिछले साल के पेपर में, दिल्ली के. सेम यही क्वेश्चन आया. अब देखो ये आपकी किताब में कहीं दिया है. अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो यू विल फाइंड दैट दिस क्वेश्चन हैज मींस दे हैव not included this particular portion, but in NTSC the question was based on this, that how many lists were there originally in our means how many items were there in our list originally. So 97, 66, 47. So what happened over a period of time, list में कुछ addition subtraction भी हुआ है. Now ऐसे करके आप देख सकते हो there are 100 list items in union list. Okay, और यहाँ से 5 घटा तो 61 in state list, यहाँ पे 5 जोड़ दो 52 in कॉन्करेंट लिस्ट. ये कब हुआ था? इसमें देखो यहाँ से 5 घट गया, यहाँ में 5 जुड़ गया. दिख रहा है? 66 minus 5 61, 47 plus 5 52, है ना? तो ये कब हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है.
बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ओके, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ये दीज आर डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट क्या करेंगे, यूनियन लिस्ट में वही जो है कानून होंगे, वही मतलब यूनियन लिस्ट, यूनियन के अपने जुरिस्डिक्शन होंगे। दैट दीज आर 97 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस पे आप कानून बनाएंगे। स्टेट को कह दिया यू हैव दीज सब्जेक्ट्स, 61 सब्जेक्ट्स, ओके। आप इस पे ही कानून बनाएंगे। ऐसा नहीं कि दैट यू आर अ स्टेट गवर्नमेंट एंड यू विल कम एंड मेक लॉ ऑन दिस आइटम्स और ऑन दिस सब्जेक्ट्स। You have your own subjects and be within your jurisdiction, means make laws on your subject only. Okay, union का अपना separate, state का अपना separate. And now the concurrent list. So in case of concurrent list, what you will see that both union and state government have power to make laws on concurrent list items, है ना। तो 52 है, यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है उस पे लॉ, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है लॉ। अब क्या होता है जब दोनों का लॉ बनाते हैं, यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे, ओके। सपोज कॉन्करेंट लिस्ट पे, इस पे कॉन्करेंट लिस्ट पे मैं सीरियल लिख रहा हूँ, तो यूनियन एंड गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लॉ बना दिया एक ही आइटम पे। तो व्हाट डू यू थिंक, विच हुज Central government. अथॉरिटी और हुज लॉ विल प्रिवेल? Central government. इट्स यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। इज दिस क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. आई एम आस्किंग फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, Yes, इज इट sir. क्लियर? तो हम लोगों ने पढ़ा टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या होगा, अपना सेपरेट जुरिस्डिक्शन। दैट जुरिस्डिक्शन विल बी क्लियरली मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब इसमें थोड़ा सा आपको लिखने वाला पोर्शन भी है जो आपको करना है और इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनटीएससी, ओके, एंड दिस वन विल बी फॉर बोर्ड एंड एनटीएससी बोथ, ओके। तो नेशनल इंपॉर्टेंस, यूनियन लिस्ट में यू विल फाइंड that things of national important like डिफेंस, ये पूछा जाता है एनटीएससी में, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस की बात आ गई, फॉरेन अफेयर्स की बात आ गई, बैंकिंग की बात आ गई, कम्युनिकेशन की बात आ गई, एंड करेंसी की बात आ गई, ठीक है। तो इन सभी पे कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी on this matter throughout the country. नोटबंदी हुआ तो पूरे देश में हुआ, ऐसा नहीं कि बिहार में हुआ, यूपी में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ। मैटर थ्रू आउट द, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. सर बस एक और चीज मुझे पूछनी थी सर, ये हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं? I think your admin department will have better answer for this. Okay, sir. Okay. तो अब नेक्स्ट आते हैं। Shall I rub this now? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट हमारा क्या था? स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा? वो आइटम्स आएंगे जो स्टेट वाइज, स्टेट के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, स्टेट गवर्नमेंट,
अलोन बनाती है क्या लॉ? Okay, now this one is second one. This one is third one. Concurrent list. ये कौन सा लिस्ट है? Subject of common interest. Both union and state government can make like education, forest, trade union, marriage, option and succession. If conflict, short में लिख रहा हूँ मैं, law made by the central government will prevail. ठीक है, law made by the central government will prevail. समझ में आया? Is this clear? इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट sir. क्या है? ये सारा इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्या है इम्पोर्टेंट? ये कब किसमें आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया तो कौन सा पुलिस किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और नन ऑफ दीज। तो स्टेट लिस्ट है ना? Yes, sir. इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट के बाद नेक्स्ट अगर आइटम आप देखो तो एक आता है, एक और लिस्ट है जिसका नाम है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी का क्या मतलब होता है? Sir, residuary subjects are those subjects which came into existence after the constitution was made. रेसिड्यूरी में जो बच गया, जो इसमें नहीं है, जो बचे हुए, ये जो बाद में आते हैं वो, ठीक है, वो उस पे कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उस पे कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बाद में आए हैं जैसे कि लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाद में आया, ई कॉमर्स बाद में आया। कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट विल मेक लॉ। Okay. Is this clear now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हिमानी, अदिति, Yes, sir. shall I rub this? Yes तो बोलो। Yes, sir. अब देखते हैं, हम मैंने कहा कि इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया कि सम स्टेट हैव स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, कुछ स्टेट्स के बाद स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। तो कोई बता सकता है अपने से कि विच स्टेट यूज्ड टू हैव स्पेशल प्रिविलेजेस? Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. ओके, वेरी गुड। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो है आज के स्पेशल प्रिविलेज नहीं है आज के डेट में, बट देयर यूज्ड टू बी अ स्पेशल प्रिविलेज। तो व्हिच काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज डू यू नो दैट दे यूज्ड टू हैव? It had their own. I think the state had its own flag. ऑफिशियल फ्लैग Yes, sir. और Its own governing rules. ओके, एनीथिंग एल्स? Sir, property matters. चलो ठीक है। ऑल स्टेट्स लिखो, ऑल स्टेट्स इन इंडिया डोंट हैव आइडेंटिकल पावर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर
अब ये पुराना आपकी किताब में दिया इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज आज की डेट में नहीं है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के केस में देखोगे तो आर्टिकल 370 यू माइट हैव स्टडीड और यू माइट हैव लिसन्ड ऑन टेलीविजन चैनल। Article 370 and 35A was a kind of special privilege given to the state of Jammu and Kashmir. Okay, granted to Jammu and Kashmir special privilege. Article 370. इसके अंदर क्या था? They had their own constitution. Earlier they had their own constitution, own official flag. Okay, and apart from this, there was an Article 35A in which any girl of Jammu and Kashmir married outside the territory of Jammu and Kashmir to any other people, okay, means who are not resident of this Jammu and Kashmir, then the very right of property of that girl will be revoked or be banished. मतलब कोई लड़की अगर जम्मू एंड कश्मीर में है और वो किसी इंडिया के किसी दूसरे जो है स्टेट के किसी लड़के से शादी कर लेती है, तो उस लड़की का जो भी वहां पे प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पे उसका हक खत्म हो जाएगा। ओके, तो और फिर ये था, फिर उसके बाद आर्टिकल 370 था, स्पेशल प्रिविलेज मैंने आपको बता ही दिया था जो उनके पास होता था। तो ये सारी चीजें उनके पास जम्मू एंड कश्मीर में जो है के बाद जो है कि लोगों के पास होती थी स्पेशल, और भी कोई लॉ होता मतलब कुछ ऐसे लॉ थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन उस पर जो है कानून बना देता था, बट बहुत सारे लॉ ऐसे थे जिसमें उनको स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ता था तभी वो लॉ बनता था, अदरवाइज नहीं बन पाता था। तो इस तरीके से स्पेशल प्रिविलेज ग्रांटेड थे जम्मू एंड कश्मीर में। आज के डेट में ये नहीं है। तो कैन बी आस्क्ड इन योर एमटीएससी एग्जामिनेशन दैट व्हिच आर्टिकल वाज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट वाज आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। फिर इसके बाद ये कौन से पार्ट में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन के 21 पार्ट में दिया है। फिर उसके बाद देखो एक आर्टिकल और है जिसमें अभी भी आज के डेट में भी स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, आर्टिकल 371। ये कौन से रीजन में है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो इंडिया के हैं, मेघालय, असम, इन लोगों को अभी भी स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल 370। ओके, Yes, sir. Yes, sir. दो बच्चे यस कह रहे हैं, बाकी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें Yes, नेक्स्ट sir. आता है यूनियन टेरिटरी। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है? यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरीज, अब यूनियन टेरिटरी सपोज दिस इज द स्टेट ऑफ मींस दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने बना लिया है लैपटॉप के साथ। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही मैप हो, बट फिर भी समवेयर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ होगी। ऐसे भी मैप का थोड़ा सा मेरा कमजोर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंडिया के अगर ये मैप देखें तो इस मैप में यहाँ पे आप देखो दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, जन्म माहे यहाँ पे है, कराईकाल। तो इस तरीके से नंबर ऑफ यूटीज आर देयर। ठीक है, अब तो यहाँ पे लद्दाख भी एक यूटी है। अच्छा, ये आप लोग ये बताओ, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी डू वी हैव राइट नाउ इन इंडिया? 9 union territories and 28 states. 28. किसी और बच्चे का कोई और आंसर? साहिल, आपने क्या बताया? 9 यूनियन टेरिटरीज। Yes, sir. चलो लिख लो। ओके, लिख लिया सभी ने? Yes, sir. हाँ, तो राइट नाउ वी सर मतलब इन दोनों को ऐड नहीं किया गया, मतलब एक ही ऐड हुआ है? एक्चुअली दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ओके, दे हैव बीन मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना है जिसकी कैपिटल दमन है। ओके सर, कब हुआ ये मतलब? इट वाज मींस इफेक्टिव 26 ऑफ जनवरी 2020। ओके सर। तो आर्टिकल 371 यूनियन टेरिटरीज हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखो यूनियन टेरिटरीज पर्टिकुलरली एंजॉय। सभी लोग माइक क्लोज करो अपने, म्यूट योरसेल्फ। एंजॉय वेरी लिटिल पावर। ठीक है, एरिया टू स्मॉल
to become an independent state. But which could not be merged with any of the existing states. ठीक है, ये आपको लिखना है। वेरी लिटिल, ये बहुत छोटे हैं, इनको कैसे बनाया जाए? तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्टली इस पे रूल करती है। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है, बहुत छोटे स्मॉल टेरिटरीज हैं, और वो किसके हेल्प के थ्रू करती है? एलजी के। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हेल्प से डायरेक्टली क्या करती है? उसको रूल करती हैं। और दिल्ली भी क्या है? एक यूटी है। ठीक है, दिल्ली भी क्या है? यूटी। आप जानते हो, दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आप जानते हो, देखो केजरीवाल की भी गवर्नमेंट है और ये एक यूटी भी है। तो यूटी मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट रूल करेगी। तो जो ये केजरीवाल की गवर्नमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं था, फिर भी थोड़ा सा आप लोग जानते रहो, बिकॉज यू आर somewhere living in Delhi, so you should know. So if you will look at Article 3, as for Article 239 AA of the Indian Constitution, इसमें कहा गया है पुलिस, the matter of police, public order and land will be outside to the purview of state government or the elected government. Means Kejriwal don't have right on police, public order and land, है ना? बाकी सब चीजों पे Okay. you will look after this. तो which union territory? सर, हाँ, ये एक बार रिपीट कर दो ये वाला पार्ट जो आपने लास्ट समझाया। कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड ये दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ठीक है, इस पे यूनियन टेरिटरी क्या करती है? यूनियन गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाती है, और वो किसके थ्रू बनाती है? ऑब्वियसली एलजी के थ्रू। ठीक है, ओके सर, ये आर्टिकल 239 क्या है आगे? डबल ए। ओके, ठीक है, कैन बी आस्क्ड इन योर एनटीएससी। ठीक है, डिपेंड करता है, यू शुड नो। ठीक है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, यू शुड नो। तो अब यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? ये सर अच्छे से हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं पावर शेयरिंग पे। ठीक है, अब हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, फेडरलिज्म में पढ़ा था 2 और more लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिर पढ़ा हमने कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल हैव इट्स ओन jurisdiction, दैट jurisdiction विल बी clearly mentioned in our constitution। इतना हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन द अपेक्स कोर्ट विल एक्ट एज एन अंपायर एंड विल रिजॉल्व दैट इशू। ठीक है, विल रिजॉल्व दैट इशू। और उसके बाद हमने कहा कि ये भी पढ़ा था उसमें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है और द फंडामेंटल जो प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल प्रोविजन कहो या बेसिक स्ट्रक्चर कहो, बोथ आर द सेम थिंग, यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली। तो उनमें से आप दोनों में से क्या जो है, आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो फंडामेंटल प्रोविजंस यू कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली, मींस एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज फंडामेंटल प्रोविजंस यूनिलैटरली। व्हाट दे नीड, दे रिक्वायर द कंसेंट ऑफ अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आल्सो, है ना? उनको अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए, तभी वो जाके क्या होगा? फंडामेंटल प्रोविजन चेंज होगा। ये हमने वहां पढ़ा था, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अब जैसे कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। पावर शेयरिंग अगर देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो पावर शेयरिंग दिया हुआ है, किसके बीच में? बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यही क्या है? दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको आप चाहो, यूनियन गवर्नमेंट चाहे कि इसको चेंज कर दें या स्टेट गवर्नमेंट चाहे चेंज करने तो नहीं कर सकता, पार्लियामेंट चाहे चेंज करने तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा? लिखो, द पार्लियामेंट alone cannot make changes। ठीक है, तो दिस if any change
then it should be first passed by the houses. Houses समझते हो ना? लोकसभा और राज्यसभा, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, Yes. हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से उसको पास कराओ, ठीक है, विथ एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ओके, एंड ratified by the legislature of at least half of the states. ठीक है, तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर पार्लियामेंट पास कर देती है और उसको हाफ ऑफ द स्टेट्स भी उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, then there will be a change in that basic structure. Otherwise, it is very difficult to change the basic structure of the constitution. Okay, and apart from that, okay, who knows that what is the basic structure of the constitution? Can any one of you explain this or have an answer for this? Sir, what? Who knows better that what is the basic structure of the constitution? I think. बताइए भाई, who knows better that what is the basic structure of the constitution? Judiciary knows this. ठीक है, wait, who is the guardian of constitution? Guardian of constitution, judiciary. आपने पढ़ा है. So judiciary also knows that what is the basic structure of the constitution. ठीक है, basic structure of the constitution क्या है? Judiciary knows as per the Keshav Nanda Bharti Act, ठीक है, 1973. तो you should know this also. ठीक है, चलो इतना तो important है for sure. That can be asked in your board as well as NTSC competition. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये याद होना चाहिए सभी बच्चों को, ये वाला पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देख लेना आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर नेक्स्ट अगर आप जाएं तो नेक्स्ट आपका था जुडिशरी वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? जुडिशरी वाला. दैट इज इन देयर इज एनी केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इफ देयर विल बी एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देन हु विल एक्ट एज एन अंपायर? जुडिशरी विल एक्ट एज एन अंपायर. तो हमारे यहाँ किस तरह की जुडिशरी है? डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट? डिपेंडेंट. अच्छा, हमारे यहाँ ये बताओ, डिपेंडेंट जुडिशरी है या इंडिपेंडेंट जुडिशरी? ओवरऑल ये बताओ. Independent. वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो इसमें एपेक्स कोर्ट कौन है हमारा? व्हिच वन इज द एपेक्स कोर्ट? हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट. वेरी गुड. देखो, important court overseeing the implementation of constitution. वैसे आप लोगों ने 9th में भी सोशल पढ़ा था, मतलब XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे क्यों? ये बच्चा आप में से, हेलो, हाँ बताइए. आप क्या पूछे? मैं कह रहा हूँ आपने 9th में भी सोशल पढ़ा था कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में? नो सर. आपने? अरे मैंने सबसे पूछा है, कोई बच्चा पढ़ रहा था? नो सर. No, sir. ओके, चलो कोई बात नहीं. अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ के? समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस सर। ठीक है। तो जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसी। हाँ एक्चुअली सर, हाँ बोलिए। सर एक्चुअली आज मुझे क्लास ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया, तो क्या आप वो जो स्टार्टिंग का टॉपिक, मतलब कि क्या टॉपिक थे, आप बता सकते हो? स्टार्टिंग का टॉपिक क्या था? मैंने यस सर। लिस्ट के बारे में समझाया था। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट, है ना, मैंने वो बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि यूटीज के बारे में, स्पेशल प्रिविलेजेस जो मिले हैं स्टेट को, उसको उसके बारे में डिस्कशन किया। और उसके बाद ये, आप लेट क्यों हैं वैसे? लेट क्यों हुए ओके थे? सर, ये सर एक्चुअली वो लिंक जो है ना, मैम वैसे रोज व्हाट्सएप पे सेंड करती थी, मगर आज मैम सेंड करना भूल गई, तो मैंने मैम से कांटेक्ट किया, तो उन्हें बताया, तो उन्होंने भेजा। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर रजनीश यादव। चलो ठीक है, एक बार पढ़ लेना, अगर डाउट आएगा तो मुझसे पूछना। चलो, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था ना कि क्या पढ़ा था कि if there will be any conflict then apex court will act as an umpire, jurisdiction clearly mentioned in constitution, फिर फंडामेंटल प्रोविजन यूनिलैटरल चेंज नहीं हो सकते। क्या हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया ये फॉलो कर रही है? देखा है ना कि इंडिया ये फॉलो कर रही है? Do क्या India is सर? following the features of federalism? मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो हम लोगों ने सातों पॉइंट पढ़े थे, उसी के बेसिस पे तो मैं बाकी पॉइंट्स बता रहा हूँ। अच्छा नहीं समझ में आया क्या पूछ रहा हूँ? सर, आया आया एक मिनट। अरे भाई, वहां पे लिखा था 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के 7 फीचर मतलब वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो 7 फीचर्स हैं। ठीक है, तो उस 7 फीचर्स में मैंने बताया 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसमें लिखा है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन jurisdiction and that jurisdiction will be clearly mentioned in our constitution। यहाँ पे भी देखा कि yes there is a separate jurisdiction and यस that jurisdiction is clearly mentioned in our constitution in form of list, union list, state list and concurrent list। फिर वहां पे हमने पढ़ा कि फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। हियर आल्सो वी फाउंड दैट वी कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर और द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, वी नीड at least 2/3 majority to pass it from the houses of the parliament as well as it should be ratified by half of the legislative state, है ना। फिर उसके बाद हमने वहां पे पढ़ा कि यस if there is a case of conflict in between the center and the state, okay, then apex court will act as an umpire। Here also we found that the court helps out us in helps in solving out the problem between or the conflict between the center and the state। यही तो पढ़ा, तो सेम तो है, फॉलो हो रहा है ना? सर। एक बच्चे ने अभी यस कहा है, सर हो रहा है, हो रहा है। बाकी बताओ। आदिति, इज इट क्लियर? तो सारे फीचर फॉलो हो रहे हैं इंडिया में। आदिति, हिमानी, साहिल, ये सब बच्चे हैं या सो गए हैं? यस सर, यस सर। चले, तो अब नेक्स्ट आते हैं। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर क्या टू रेज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को क्या करने का है? रेज करते हैं। रिसोर्सेज रेज करेंगे तो क्या होगा? तो दे विल अर्न मनी। ठीक है, बाई, अब ये कैसे करते हैं? बाई लेवाइंग टैक्सेस। तो इसी को आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पढ़ा था। Yes, sir. यस सर। ओके,
तो ये सातों फीचर्स फॉलो हो रहे हैं। सातों में आप आखिरी में था आपका एकोमोडेट डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है। तो in all we will say that yes, India is following the features of federalism, though India is not a pure federal country, because here central government has more power than state government. So an example of holding together federation. Okay, is this clear to each and everyone? Yes, sir. Okay, तो आप में से आप में से सब आप में से सभी लोगों ने ये चैप्टर आई थिंक अपने स्कूल में मोर और लेस पढ़ ही लिया होगा। तो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, इफ अ क्वेश्चन कम्स लाइक दिस दैट अगर एग्रीकल्चर और कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, तो हम लोगों के पास एग्रीकल्चर और कॉमर्स के सेपरेट मिनिस्ट्रीज क्यों हैं यूनियन कैबिनेट में? ठीक है, और या ऐसे कह लो कि मिनिस्टर्स क्यों हैं हमारे यूनियन कैबिनेट में एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स के, अगर ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं तो? आंसर करो, आंसर दिस आउट। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है बताइए, आंसर बताइए। साहिल, क्लास में साहिल है? नमन को, नमन, नमन पोखरियाल, Yes, sir. इस क्लास में साहिल है? नो। No, sir. नहीं है। ओके, चलो इसका आंसर किसी के पास है आप में से? Sir, because of the wider prospect of these subjects regarding interstate trade. चलो लिख लो। रिगार्डिंग इंटर-स्टेट ट्रेड, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड हो सके इसलिए वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। समझ में आई बात? ओके फॉर एवरीवन? ओके, shall I rub this now? मिटा दो। यस सर। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट टर्म है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस्ड होती है इंडिया में? तब ये बताओ कि
फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इस वजह से प्रैक्टिस होती है कि इंडियंस चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए सर इस वजह से प्रैक्टिस हो पाती है। क्या वजह है फेडरलिज्म के प्रैक्टिस होने की? मतलब क्या कारण है फेडरलिज्म अगर है इंडिया में और सक्सेसफुल होना है टू एन एक्सटेंट, क्या वजह है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए? Is it that it is merely written? Is it that it is आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्या नाम है? किसने क्वेश्चन पूछा था? ये क्या कुछ कह रहे हैं बट यू आर नॉट क्लियर, मींस योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो, चले तो आप में से किसी के पास आंसर नहीं है इसके, इस चीज का? तो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म देखो, इंडिया में जो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म है टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, ये ड्यू टू किसकी वजह से है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। सक्सेस फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये कारण है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो one of the reason why federalism is successful over here is that the people in India respect diversity and they have the desire to live together. Constitution में लिखा है, ठीक है, we are respecting our constitution, but what if this constitution is not accommodative? अगर इस constitution में, if there is, this constitution is not a balanced one, if suppose, so we will not follow that constitution ना। constitution अगर balanced नहीं है, biased है, if constitution seems like biased to some particular religion or caste or someone or whatsoever, so we will not follow that constitution, है ना? So constitution, yes, somewhere is a factor, but the main factor is that people in India here wants to live together. They have the desire to live together. That's why the federalism in India is a success. Okay. What are the Yes. examples? What are the examples through which we can say that India is actually following a good federalism? So first one is linguistic state. Okay, अब हुआ क्या कि when India became independent, okay, in the year 1947, so what happened? There used to be 565 around, okay, princely states, approximately. This is the rough figure I'm sharing. ये थोड़ा सा एडजस्टेड मैप है, ठीक है, आप एडजस्ट करिएगा इसमें थोड़ा सा।
ये ऊपर वाला पोर्शन और बड़ा होगा, यहाँ पे लिखा था तो इसी में एडजस्ट कर दिया इसे। तो अब इसी में आप देखो नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले जो बिग स्टेट्स थे, जैसे पंजाब, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, याद है आप लोगों को, पढ़ा है ना, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, पढ़ा है ना आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में सब। तो ये प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, ठीक है। तो इस प्रेसिडेंसी का फिर टूट के निकलना, फिर इसमें अलग अलग देखोगे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो इन भाषाओं की वजह से उनको एक साथ रखना क्या है, बहुत मुश्किल काम है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी, ठीक है, हु हैव डिफरेंट रिलीजन, सॉरी नॉट डिफरेंट, हु हैव डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, डिफरेंट इफ दे आर फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, अलग अलग भाषा बोलना कैसे एक साथ रखा जाए। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि दैट वी शुड हैव अ सेपरेट स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ओके, कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करो, एक लैंग्वेज ईस्ट रीजन में एक काम करो, जो तमिल बोलने वाले हैं यहाँ रख दो, तेलुगु वहाँ, ठीक है, कन्नड़ ऐसे, तो मतलब इस तरीके से, ऐसे मैंने एग्जाम्पल बताया, रफ में बताया है। तो इसको अगर सेपरेट कर देंगे लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पे, तो वहाँ पे एट द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम लोगों के अंदर डर था कि कहीं जो इंटीग्रिटी है इंडिया की वो ब्रेक ना हो जाए, ओके, इंटीग्रिटी इंडिया की क्या ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। तो लोगों ने फिर जो पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वाज नॉट ऑफ द व्यू दैट वी शुड हैव अ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, मींस ही वाज अगेंस्ट द कांसेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। बट व्हाट हैपेंड, ठीक है, इन द ईयर 1953 एक आपके जो है जो है कि क्या नाम था, कोई नाम बता सकता है, 56 दिन का उन्होंने उपवास रखा था, फिर उनकी डेथ हो गई थी। किसी को याद है उनका नाम? पट्टी श्री रमल्लू, क्या नाम है उनका? पट्टी श्री रमल्लू। उन्होंने हाँ, उन्होंने 56 डेज का जो है कि क्या किया था, फास्ट रखा था, फिर उनकी डेथ हो गई थी। और फिर जब डेथ हो गई तो तुरंत लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट बना पट्टी श्री रमल्लू के डेथ के बाद 1953 में, ठीक है। क्या नाम था उस स्टेट का? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेट which was formed on the basis of language, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज था? लैंग्वेज क्या था? तेलुगु लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के बेसिस से बना तेलुगु लैंग्वेज में। ईयर 1953 बता दिया। इसका पेरेंट स्टेट कौन सा था? मद्रास, पेरेंट स्टेट वो मद्रास। फिर देखा गया कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी 1953 में अंडर 1953 में अंडर किसके बनी थी? अबुल फजल, फजल अली। फजल अली के अंदर में बना। फॉर्मर CGI थी, HN कुंजरू, KM पनिक्कर, ये भी थे, बट मेन यही थे, फजल अली। तो एक एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NTSC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। कब का? 1956। अब इसके बेसिस पे अब ये क्या हुआ, इसने रिकमेंड कर दिया कि यस वी कैन फॉर्म स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो वी कैन सी दैट नंबर ऑफ स्टेट्स वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। पहला कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि गुजरात बना, ओके, फिर उसके बाद हरियाणा बना, है ना। ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब क्या बनते गए? स्टेट बनते गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, ये तो लैंग्वेज के बेसिस पे बने। फिर उसके बाद देखो कुछ ऐसे भी थे, अब मैं इसको रब कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना जितना मैं बता रहा हूँ आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब एक स्टेट ऐसा बना, कुछ स्टेट ऐसे बने
some state were created on the basis of culture, ethnicity, or geography. ठीक है, एग्जाम्पल नागालैंड। एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। नागालैंड बना था, कब बना था? 1 दिसंबर 1963। ओके, इसका पेरेंट स्टेट कौन सा है? असम। ठीक है, पेरेंट स्टेट इसका क्या है? असम। नागालैंड का याद रखना। फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्टेट हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ किससे निकल के बना है? मध्य प्रदेश। कब बना? 1 नवंबर 2000। फिर उसके बाद आप देखो उत्तराखंड, ये किससे निकल के बना है? यूपी। 9 नवंबर 2000। फिर उसके बाद कौन सा बना? झारखंड। ये कब किससे निकल के बना? बिहार। कब बना? 15 नवंबर 2000। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेट बने हुए हैं, 2000 में ही बने हैं। देखो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो कारण क्या था? सोशियो पॉलिटिकल रीजन। कारण क्या था? सोशियो पॉलिटिकल रीजन। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी तक जो भी पढ़ा है। No, sir. Do anybody have any kind of doubt? Can ask. If anybody have any kind of doubt, can ask. No? No, sir. चलो, तो नेक्स्ट आते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट, आई थिंक यू ऑल नो। सभी लोग जानते हैं ना कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है? Yes, sir. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. ऐसा लिख लो, गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट ये एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। सीबीएसई वगैरह में आता है। तो अब आप देखो, तो लिंग्विस्टिक स्टेट में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो लिंग्विस्टिक स्टेट में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा फेडरलिज्म और ज्यादा क्या हो गई? मजबूत हो गई। कैसे? कि भाई लोगों को पहले डर था कि भाई कंट्री डिवाइड हो सकती है लैंग्वेज बेसिस पे। हम लोगों ने अगर सेपरेट स्टेट बना दिया तो हो सकता है वो कहें कि हम अब इस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहते, हम अलग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्री न बनने की मांग करें। तो इस तरीके से एक डर था। बट ये हुआ, बट देखा गया कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब उनकी बात मान ली गई, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना दिया गया, तो फेडरलिज्म वीक नहीं हुआ बट स्ट्रॉन्ग हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हुआ? वो स्ट्रॉन्ग हुआ, है ना? तो दिस इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ओके, बिकॉज अगर आप लिंग्विस्टिक स्टेट बेसिस पे स्टेट बना रहे हैं तो देयर इज अ चांस दैट दे वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, है ना? तो हम लोग जब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा? लैंग्वेज पॉलिसी। तो बताओ कि हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव, शेड्यूल्ड लैंग्वेज वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 120. कितना? 129. वेरी गुड। ये 129 कहाँ आपने पढ़ा है? 129 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Who told you? साहिल क्लास में है?
22. No, Someone is saying 22. Who's saying 22? Who is saying? Himani, very good. So we have 22 language. कौन से है, किसमें है वो? 8th शेड्यूल. जैसे भी आपने 7th शेड्यूल में क्या पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था. 8th शेड्यूल में we have 22 लैंग्वेज. ठीक है, 22 लैंग्वेज है. याद रखिएगा, एनटीएससी का क्वेश्चन है. व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज? नेशनल लैंग्वेज क्या है? We don't have any particular national language. No particular national language. हमारे यहाँ कोई particular national language नहीं है. तो हिंदी नहीं हो सकती? हाँ, तो हिंदी नहीं हो सकती नेशनल लैंग्वेज? नहीं, हिंदी नहीं है. तो वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज. अगर देखें ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखा जाए तो वी हैव, फर्स्टली वी यूज्ड टू हैव हिंदी. ठीक है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज में एट द सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, हिंदी. बट प्रोटेस्ट हुआ, अनरेस्ट हुआ, पर्टिकुलरली कहाँ? स्टेट ऑफ तमिलनाडु. व्हाई हिंदी विल बी कंसिडर्ड, है ना? आपने पढ़ा था ना, एक्ट ऑफ 1956 इन श्रीलंका, when Sinhala was considered as the only official language. They protested over there also. Here also, when it was declared that Hindi will become the official language of the central government, then also a protest erupted. That why you are considering only Hindi? India has a huge diversity where different people are speaking different languages, and you are giving preference to Hindi. Why? So there was a protest, okay, against the official language of Hindi. So what happened that the central government added English also, Hindi and English. We have both this language as an official language. Hindi भी है और English भी है. Okay. Yes. Yes, sir. अच्छा, ये बताओ, इस 22 लैंग्वेज में हमारा इंग्लिश भी है? No, sir. Very good. English not in scheduled language list. ये MTSC का क्वेश्चन है. So it is not part of scheduled language, English. Okay. Yes, sir. तो अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज, अब हमने इस लैंग्वेज में देखा कि हमारे यहाँ 22 लैंग्वेज हैं शेड्यूल. आप कोई भी भाषा में अपना जो है, अगर सेंट्रल लेवल पे एग्जाम देते हैं तो किसी एक भाषा का चूज करके आप दे सकते हैं. ओके. और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात, नेशनल लैंग्वेज हमारा कोई है नहीं. ऑफिशियल लैंग्वेज सेंट्रल लेवल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों है, और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज भी है. ओके. और इंग्लिश इज नॉट पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज. तो आप देखो कि लैंग्वेज पॉलिसी में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हुआ था हिंदी को लेकर, बट दैट डिस्टर्बेंस आल्सो सॉर्टेड आउट. ठीक है, was sorted out earlier, ठीक है, in the period of 1965 and 76. ओके. तो इस से हम इन्हें ये देखा कि लैंग्वेज के डिफरेंस होने के बावजूद भी फेडरलिज्म वीक नहीं हुआ इंडिया में. इस फेडरलिज्म एक्चुअली क्या हुआ? सक्सेसफुल रहा है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही हुआ है. ओके. Yes, sir. सर. Yes, sir. अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्या? सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशन में देखें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. पहले क्या होता था कि 1990 से पहले एक ही पार्टी रूल करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में. ओके. तो अब ऐसे थोड़ा कोलिशन वाला मैं समझा रहा हूँ आपको. जैसे यहाँ पे एक पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसका नाम ए है. ओके. तो पहले क्या होता था, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ये स्टेट गवर्नमेंट है ना. यहाँ पे भी ए ही मान के चलो. ओके. या फिर यहाँ पे बी मान लो. क्या मान लेते हैं? बी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होती है? सम स्पेशल पावर. एज यू नो दैट इंडिया इज अ पार्ट ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर. तो व्हाट हैपेंड कि जब देखते थे व्हेन देयर इज एनी सेपरेट गवर्नमेंट और डिफरेंट गवर्नमेंट इन स्टेट, ठीक है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग ओवर स्टेट, तो ये जो सेंटर में बैठी है, ठीक है, इसके पास पावर ज्यादा है. ये यहाँ के बी को क्या करते थे? हटा देते थे. बी को क्या कर देते थे? हटा देते.
तो ये क्या अच्छा फेडरलिज्म था? नहीं, अच्छा फेडरलिज्म नहीं है ना, क्योंकि Yes, इनका sir. पावर अलग है, इनका पावर अलग है। दिस वाज नॉट अ गुड फेडरलिज्म। बट व्हाट हैपेंड, जब ये कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया, तो कोलिशन गवर्नमेंट जब आ गया, तब ये जो है इनको अब हटाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। कैसे? अब जैसे यहाँ पे कोई जो है कि पार्टी है ए और यहाँ पे एक पार्टी है बी, यहाँ पे भी बी है, अभी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं बी है और सी है, यहाँ पे मान लेते हैं सी है। अब होगा क्या, ए और बी, तो ए और बी अगर यहाँ पे है, देखो अभी इक्वेशन देखो, ए और बी मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। ये चाहता है कि सी को हटा दें, ए किसको चाहेगा, सी को हटा दें। क्या बी उसको सी को हटाने देगा? No, sir. No, sir. क्यों? 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 क्योंकि सी बी अगर देखो तो बी यहाँ भी है, बी प्लस सी। सी कहा अगर हमको तुमने यहाँ से हटाया तो ऐसा है आप भी हटोगे, क्योंकि हम यहाँ से भी हटेंगे फिर, तो बी की सरकार यहाँ गिर जाएगी। तो बी की सरकार जब यहाँ गिर जाएगी तो बी इनसे पूछेगा ऐसा है इनको आप हटाना चाहते हो ना, तो हम भी यहाँ से हट रहे हैं, चला लो। समझ में आ रही है इक्वेशन आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ए sir. अगर ए यहाँ पे सी को हटाना चाहेगा तो नहीं हटा पाएगा, क्योंकि बी नहीं हटाने देगा। बी क्यों नहीं हटाने देगा? क्योंकि बी के साथ ऑलरेडी सी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब बी Yes, sir. कहेगा कि सी कहेगा हमें हटाओगे तो हम भी तुम भी हटोगे, तो बी इनसे कहेगा कि तो अगर इनको हटाओगे तो तुम भी हटोगे, सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से क्या हुआ, फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्ग हो गया, Yes, है ना? sir. तो अब आर्टिकल लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए। आर्टिकल 352, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। फिर आर्टिकल 356, स्टेट इमरजेंसी, इसी को कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 360, माइक सभी लोग अपने म्यूट करो, सभी लोग माइक म्यूट करिए वाले। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं, यू शुड नो, ओके। तो सेंटर स्टेट रिलेशन अगर आप देखें तो अर्लियर इट वाज नॉट हेल्दी, बट इट बिकम्स हेल्दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन कोलिशन गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। होता क्या था कि आर्टिकल 350 प्रेसिडेंट रूल कह के क्या करते थे, हटा देते थे। 1989 और 90s के बाद से जब कोलिशन गवर्नमेंट आई तो ये बंद हो गया। इवन सुप्रीम कोर्ट आल्सो इंटरवीन्ड एंड सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट आर्बिट्रेरली, ठीक है, dismiss the state government because this state government is a elected government and election is free and fair. Okay, elections which was conducted over here was free and fair, and here the will of the people, we are all living in democracy where the will of the people is of utmost important, so you cannot dismiss state government, ठीक है, in an arbitrarily manner। ठीक है, समझ में आ रहा है? मनमाना तौर पे आप स्टेट गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते। Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इस पे आप लोग शॉर्ट नोट्स अपने से बना लोगे, लिख Yes, लोगे, आपके Yes, उसमें sir. होगा, इसमें है आपके बुक में, ठीक है। बुक में आप देखोगे एनसीईआरटी में, यू विल फाइंड दैट दे हैड मेंशन्ड ऑल दिस थिंग्स। ये एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोग कर लोगे, और साथ ही साथ डीवीपी भी सॉल्व करनी है। Yes, sir. Okay, sir. हाँ, देखते हैं। और बता दीजिए दोबारा। सेंटर स्टेट रिलेशन खुद से बनाना है, और बाकी तो मैंने मोर और लेस लिखवाया ही है, थोड़ा बहुत उसमें लिख लेना और इसे मेल कर देना, ओके। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी है। तो इन तीनों से हमने देखा कि जो फेडरलिज्म है इज मोर इफेक्टिव टुडे देन बिफोर। फेडरलिज्म क्या है? टुडे इज मोर इफेक्टिव देन बिफोर। तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म कैसे सक्सेसफुल हुआ, और व्हाट इज द मेन रीजन? अब देखो यहाँ पे मेन रीजन ये है कि आर्टिकल 356 है, स्टेट इमरजेंसी लगा दो, इसको हटा दो,
है ना। बट क्या हुआ, लोगों ने इंटरवीन किया, कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, judiciary भी intervene करती. So it is due to the willingness of the people who are living over here in India that they want to live together. That's why their federalism is a success over here. Otherwise, it is very difficult. Write it down somewhere in book or copy. We will not follow it. Then who will look after this? कुछ किताब में लिखा है, ठीक है, जब आप फॉलो करोगे तभी तो उसका इम्पोर्टेंस है ना. Yes, sir. चलो एक पॉइंट और भी है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा. ये लिख लो, प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर. एक बार एनटीएससी में मैंने देखा था कि इन्होंने पूछ लिया था, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू राइट दिस. प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर. प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर में देखें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या, कौन से भाषा बोलने वाले लोग हैं? हिंदी, 40.2. फिर बांग्ला आ जाएंगे, ठीक है, 8.3. फिर उसके बाद तेलुगु 7.9. ओके, फिर उसके बाद मराठी 7.5. फिर उसके बाद आपका तमिल 6.3. इतना लिखवा दे 5. तो 5 ही याद रखो. ABT MT, ABT MT ऐसे करके, सॉरी HBT नॉट ABT. हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल. तमिल याद रखना सबसे पीछे. तेलुगु. Yes, sir. HB का पेंसिल है. TMT का कुछ है, कुछ आता है? अरे TMT का कुछ है, कोड कुछ आता है मार्केट में? ये सब याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. HB TMT, ठीक है, आपको याद रहे एनटीएससी के लिए. समझ में आया आप लोगों को जो भी पढ़ाई हुई आज? Yes, sir. Yes, sir. यस 3 बच्चों ने अभी तक गैस कहा है. ओके, बाकी बच्चे बताओ भाई. ये याचना मशीन कौन है? याचना मशीन आप अपना नाम बताएंगी? बताएंगे या बताएंगी, वट एवर, आई डोंट नो. ओके, वेरी गुड. एकेडमिक डिपार्टमेंट से कौन है आपके? मधु मैडम है. Am I audible to all? मेरी आवाज सभी को आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir, आ रही है बढ़िया. आप जानते हैं ये कौन है याचना मशीन? No, sir. No, sir. No, sir. No idea. ओके, हर क्लास में रहते हैं या रहती हैं? Yes, यस sir. ओके, चलिए मैं पता लगाता हूँ कौन है. याचना मशीन ने सर एक चैट पे लिखा है. अच्छा, ज्योति सर शी शर्मा. ज्योति शर्मा. ओके, ज्योति. चलिए ठीक है. और आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए. मॉड्यूल मिल गया ना सभी को? मॉड्यूल सभी को मिल गया है ना केल्विन का? मॉड्यूल नहीं मिला है? No, sir. No, sir. मॉड्यूल के लिए पूछिए और मॉड्यूल ले लीजिए, ठीक है. और मॉड्यूल से क्वेश्चन आंसर देखिए, लिखिए. आप लोगों के सोशल के कुछ यूट्यूब वगैरह में मतलब यूट्यूब वगैरह हो गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैसे मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के? ठीक ठाक आ रहे हैं? Yes, sir. ओके, तो अभी तक सोशल में आपको 10th में आपको जो है कि कुछ जो है प्रॉब्लम फेस किए आप किसी भी सब मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे या टॉपिक पे सोशल में?
Rise of nationalism in Europe. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके। और Subject of chapter. और बताओ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में और किसको प्रॉब्लम है? ज्योति, मांशु, हिमानी, नमन, अदिति, मतलब इन सबको क्लियर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना? No, sir. हाँ, Even my both sides of me. अच्छा, नेशनलिज्म इन इंडिया सभी को क्लियर है? वो भी हुआ नहीं। Okay. तो अब आप बताइए नेक्स्ट आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? मतलब ये टॉपिक तो ऑलमोस्ट एक टॉपिक और लेफ्ट है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं तो वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे एंड विद इन हाफ एन आवर आई थिंक वी विल कंप्लीट दैट टॉपिक, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड ओवर हियर। तो अब ये बताओ कि which topic would you like me to start for your Nationalism. Yes, sir, nationalism. Nationalism. nationalism in Europe? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने डेमोक्रेसी में देखा जाए तो वोटिंग भी होती है। किन किन लोगों ने कहा? एनके तोमर, हिमांशु एंड हिमानी, 3 people are saying yes। अभी तौफीक, ज्योति, अदिति और नमन को बोलना है। अदिति, which chapter? यस कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो कोई भी Okay, doesn't matter, none of the above, okay। ज्योति, नमन, नमन सो गए क्या? नो सर, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? कोई सही पढ़ा दो सर। नेशनलिज्म इन यूरोप? So nationalism. हाँ, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। नेशनलिज्म इन यूरोप ही कह रहे हैं ना? Yes, sir. ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डोंट वरी। और बस जितना भी मैंने कराया उसके नोट्स मेरे मेल पे भेज दो ताकि मैं देख लूँ, ठीक है। पर्टिकुलरली सेंटर स्टेट रिलेशन वाला भी आप लोगों को खुद से देखना है मुझे कि कौन कौन बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। और मुझे जो मिलता है मेल वो है हिमानी, आई थिंक चौधरी, एनके तोमर, इन्होंने भी भेजा है ना। बाकी कोई बच्चा अभी तक नहीं भेजा, किसी ने नहीं भेजा अभी तक। आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम आप भेजोगे, ठीक है। ओके एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Good night, sir. Yes, sir. थैंक यू, बाय सर। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Good night. Hello.